साथ ऐड कर लेंगे. Okay, so we are looking at virtual functions again today, and we are going to add on one small concept. But otherwise, हमने कल क्लास के अंदर किया उसी की further practice sets, but again with one small additional concept. So I'm going to do a new project. हमने example करना है shape का, where we want to get to a point where we have an application for our user जो कि अपनी मर्जी से shapes और उसको simplify करने के लिए just do rectangles and triangles, लेकिन वो अपनी मर्जी से shapes choose करके display करा सकता है. So something like that we're going to do. और उसके अंदर we want to add in the concept of an abstract class and pure virtual functions and see के वो किस जगह के ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए. बहुत बड़ी एडिशन नहीं है. If you know what happened yesterday, so this should be pretty simple to follow. But again, pure virtual functions or abstract classes का concept, definition wise, terminology wise, we're going to add in today. मैं अपना project एक दफा check कर रही हूँ ताकि I can be sure that we don't have any configuration issues. Also testing my screen sharing. You should be able to see Visual Studio मैंने खोला हुआ है. It is building. If I switch to my attendance screen, you should be able to see the attendance screen. अभी इसका console pop-up हो जाएगा. You should be able to see that. So we are starting with, we want to cover two new terms today, which is pure virtual function and abstract classes. और उसको करने के लिए we are going to do an example of a very basic shape drawing app with user input. So yesterday, if you remember yesterday's example, so हमने yesterday एक example किया था in which we had, I can draw it again, in which we had, और ये कल वाले example के अंदर भी हम कर सकते थे pure virtual वाली चीज जो अभी कर रहे हैं, but because we are adding concepts one by one, so let's add this in today. Yesterday we had an animal class and we had a dog class and we had a cat class, और हमने तीनों के speak functions बनाए थे. And when I asked कि ठीक है, it's very clear कि dog का speak function क्या करता होगा, it is very clear कि cat का speak function क्या करता होगा. But when I asked कि animal का speak function क्या करता होगा, तो you should have stopped and thought for a bit, because डॉग और कैट इस वक्त जो है बहुत कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट है. इमीडिएटली यू कैन इमेजिन के अगर मैंने इसके स्पीच फंक्शन के इसके स्पीक फंक्शन के अंदर कुछ लिखना है तो वो मुझे क्या लिखना होगा. लेकिन इफ आई हैव समथिंग लाइक एन एनिमल व्हिच इज मोर एब्स्ट्रैक्ट, मुझे पता है एनिमल क्या होता है, लेकिन एनिमल बहुत स्पेसिफिक नहीं होता इन टर्म्स ऑफ इट्स बिहेवियर, बिकॉज बहुत डिफरेंट चीज़ों को आपने कैटेगराइज करके एनिमल कहा होता है. तो हमने yesterday तो हमने ये कर दिया था कि एनिमल का स्पीक इम्प्लीमेंट किया था और उसके अंदर क्वेश्चन मार्क्स डाल दिए थे. बट समटाइम्स एंड इवन इन yesterday's केस इट कैन बी कि जो कस्टमाइज्ड फंक्शन या जो ओवररिडन फंक्शन आपने अपनी डिराइव्ड क्लास के मेंबर्स के लिए क्रिएट करना है बेस क्लास के अंदर, और बेस क्लास को आपने यूज उसी तरह से करना है. सो इमेजिन कि हम उसी किस्म की चीज करने लगे हैं जैसे हमने yesterday की थी, where we said कि इसको मैं pet लिख देती हूँ. I think we did pet yesterday, so if I'm trying to connect with yesterday's example, yesterday के example के साथ हमने किया ये था कि we made an array of pointers के साथ बनाई थी, लेकिन मैं अभी syntax नहीं लिख रही. I'm just writing down what we tried to do today, and we said that I want an array of जिसके अंदर मेरी choice के हिसाब से
cats or dogs included हो. So if I want to have a function जो कि सारे के सारे dogs और cats के साथ associated है और मैं उसको pet के through call कर सकूं, लेकिन पेट के अंदर वो फंक्शन का कोई सेंस भी नहीं बनता. जैसे कि इवन येस्टरडे भी उसका सेंस नहीं बन रहा था, हमने जबरदस्ती उसके अंदर क्वेश्चन मार्क्स डाल दिए थे. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज वी आर गोइंग टू सी कि आपके पास सी प्लस प्लस के सिंटैक्स के अंदर ही एक एबिलिटी होती है ये कहने की कि ठीक है, अ डॉग नोज या मेरी डॉग की क्लास नोज कि उसने स्पीक किस तरह से करना है, मेरी पेट की क्लास नोज कि उसने स्पीक किस तरीके, सॉरी, कैट की क्लास ऑल्सो नोज कि उसने स्पीक किस तरीके से करना है. लेकिन जब मैं पेट के लेवल के ऊपर होता हूँ तो स्पीक का कोई मतलब नहीं होता. सो आई एम गोइंग टू से कि पेट के अंदर जो स्पीक का फंक्शन है वो प्योर वर्चुअल है, जिसका मतलब है कि मैं इसकी कोई भी डेफिनेशन अभी नहीं देने लगी. यू वेट टिल आई गेट टू माई डिराइव्ड क्लास और वहां पर आपको पता चलेगा कि इसने क्या करना है. बट हमें पेट के साथ उसको लिंक किसी तरीके से फिर भी करना है, बिकॉज हम इस तरह की सिचुएशन को इनेबल करना चाहते हैं जहां पर मेरे पास पेट्स की एरे हो, मैं पेट्स की एरे के थ्रू आइटरेट करूं और हर पेट को कहूं कि आप अपना स्पीक फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करें. So for this, we are going to need pure virtual functions. This implementation is going to look something like this. So now we are doing our shape class. इस लेवल के ऊपर मुझे प्योर वर्चुअल फंक्शन इस प्रॉब्लम के लिए चाहिए, बट वी आर नाउ शिफ्टिंग टू अ न्यू प्रॉब्लम ताकि हमारे पास प्रैक्टिस के हिसाब से दो तीन चीजें अवेलेबल हो. सो अब जो आज की मुझे चाहिए हायरार्की, दैट इज Yes, I hope my screen is back up. I want a shape and I want to inherit from my shape class one rectangle class, ताकि मैं रेक्टेंगल्स यूजर को कह सकूँ कि आप रेक्टेंगल एरे में डाल के अपनी लिस्ट ऑफ शेप्स के अंदर रेक्टेंगल डाल लें और ड्रॉ कर लें, और फिर मैं यूजर को ये भी कह सकूँ कि आप अपने शेप्स के लिस्ट के अंदर ट्रायंगल भी डाल लें और फिर मैं उसको लिस्ट के अंदर से ड्रॉ कर सकूं. यू कैन होपफुली सी कि ये एक्सटेंड करके मैं जितने मर्जी इसके अंदर वो डाल सकती हूँ, शेप्स डाल सकती हूँ, बट जस्ट टू कीप थिंग्स ऑफ अ लेंथ दैट वी कैन कंप्लीट ड्यूरिंग क्लास टाइम, सिंप्लीफाई करके कर दिया है जस्ट अ शेप विद अ रेक्टेंगल एंड अ ट्रायंगल एग्जांपल. We're going to do a shape class. So imagine we're doing more or less what we're doing what we did yesterday. लेकिन अब हम कह रहे हैं कि हम अगर बेस क्लास के लेवल के ऊपर मुझे नहीं पता कि किसी फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, लाइक इवन लाइक इन द रियल वर्ल्ड उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं एग्जिस्ट करता, तो हाउ एम आई गोइंग टू हैंडल इट इन द कोड. एंड यू शुड लिंक दिस बैक टू द फर्स्ट लेक्चर वेयर वी सेड कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मकसद ही ये है कि यू आर स्टिल डूइंग द सेम प्रोग्रामिंग दैट यू वर डूइंग इन पीएफ, लेकिन अब आपको वो इस तरीके से करने की एबिलिटी मिल गई है दैट यू आर एबल टू लिंक इट टू योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस. तो दिस इज ऑल्सो अ मैपिंग ऑफ अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ चीजें जो होती हैं वो एक लेवल के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, एंड वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट अगेन. तो कुछ जगह कुछ लेवल के ऊपर चीजें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं और फिर जब आप डिटेल के अंदर जाते हो तो उनकी शक्ल कुछ नजर आनी शुरू होती है. सो वी हैव द एबिलिटी टू एक्चुअली work that abstraction into our code as well. So मैंने shape की class बनानी है.
अच्छा, शेप की क्लास बनानी है जस्ट टू गिव इट लाइक समथिंग टू डू। हम बेसिकली ये करते हैं कि शेप के अंदर एबिलिटी दे देते हैं दैट अ यूजर इज एबल टू चूज द पेन जिसके थ्रू आपने शेप ड्रॉ करना है। सो जब आप पीएफ के अंदर वो ट्रायंगल्स वगैरह बनाते थे तो सारे एस्टेरिस्क से बना रहे होते थे, बट नाउ वी आर गोइंग टू गिव द यूजर द एबिलिटी टू चूज कि जब ड्राइंग करनी है तो वो किस कैरेक्टर से करनी है, दे कैन चूज। सो वो कैरेक्टर जो है उसको प्रॉपर्टी बना देते हैं सो दैट वी हैव समथिंग टू पुट इन शेप। सो मेरे पास शेप के अंदर जो चीज मैं डिफाइन कर सकती हूँ जो कि रेक्टेंगल के पास भी होगी और ट्रायंगल के पास भी होगी इज बेसिकली द पेन दैट यू वांट टू यूज टू ड्रॉ दैट शेप। और पेन का मतलब है कि बस एक कैरेक्टर बता दें कि एस्टेरिस्क के अंदर ड्रॉ करना है कि हैश साइंस के साथ ड्रॉ करना है या किस तरीके से आपने अपना शेप ड्रॉ करना है। एंड लेट्स मेक अ कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर वी कैन से कि वो कैरेक्टर जो है, वो पेन का कैरेक्टर जो है उसको मैं एस्टेरिस्क के ऊपर बाय डिफॉल्ट ले जाती हूँ, लेकिन अगर वो कोई एस्टेरिस्क नहीं देता तो फिर आई विल जस्ट गो विद व्हाटएवर इज अवेलेबल टू मी। आई विल गो विद द एस्टेरिस्क अगर कोई डिफाइन नहीं करता, एंड देन यहाँ पर अगर कोई एस्टेरिस्क की जगह अपनी मर्जी का कैरेक्टर दे रहा है तो मैं उसको पेन के ऊपर असाइन कर दूंगी। दिस इज आवर बेसिक शेप क्लास और हम चाहते हैं कि इससे हम अपना रेक्टेंगल और ट्रायंगल इससे डिराइव करके क्रिएट करें फर्दर। सो वी आर गोइंग टू देन the function that we're going to want with both the rectangle and the triangle is the draw function. So मैंने करना है void draw over here. Now what is going to happen is we're in the same situation again जिधर हम pet के साथ सोच रहे थे कि pet को speak कैसे करवाना है, तो shape को अब मैंने draw किस तरीके से कराना है। we're going to stick our एक तो मैंने इसको वो करना था virtual तो करना ही है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन अब मैं एडिशनल स्टेप डाल रही हूँ। वर्चुअल हमने कल कर लिया था, अब मैं एडिशनल स्टेप डाल रही हूँ कि इसको प्योर वर्चुअल करने लगी हूँ और मैं इसको इज इक्वल टू 0 करके इस्तेमाल करूंगी तो ये बेसिकली प्योर वर्चुअल जो है की शेप के अंदर आ जाएगा। सो इफ आई जस्ट से कि वर्चुअल वॉइड ड्रॉ इज इक्वल टू 0, तो दिस इज नाउ माय pure virtual function that I have written in. So by doing this, I'm basically saying जिस जगह के ऊपर मैं अपना function का detail implementation लिखती थी, मैंने implementation नहीं लिखी, मैंने सिर्फ ये लिख दिया is equal to 0 और इसकी वजह से this has become a pure virtual function जिसका मतलब है shape के साथ draw conceptually exist करता है लेकिन practically exist नहीं करता। और यहाँ पर ये pure अगर मैं किसी भी क्लास का कोई भी फंक्शन प्योर वर्चुअल कर दूं तो इमीडिएटली द क्लास आल्सो बिकम्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो उसको प्योर वर्चुअल करने की वजह से आई नाउ हैव एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट आई एम गोइंग टू यूज, जिसका मतलब है कि इसको इस्तेमाल मैं पर्टिकुलर तरीकों से ही कर सकती हूँ। सो आई कैन यूज इट इन सिचुएशंस लाइक दिस जहां पर मैंने इसको इस जगह के ऊपर इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर मैं खाली पेट क्रिएट कर रही हूँ तो मैं पेट के साथ बहुत ज्यादा कोई कॉन्क्रीट किस्म की चीज नहीं कर सकूंगी, which is basically why we are calling it an abstract class over here. So abstract class है जिसका मतलब है अब इसको प्रॉपरली इस्तेमाल करने के लिए मुझे इसके derived वाले क्लासेस को पहले प्रेप करने की जरूरत है। So we will go with rectangle first. We will say कि rectangle को derive करते हैं from shape public तरीके से। अच्छा, रेक्टेंगल के पास पेन है बिकॉज रेक्टेंगल या एस्टेरिस्क या किसी ना किसी किस्म की चीज के साथ ड्रॉ होगा। एंड वी आर आल्सो गोइंग टू से in addition to the pen I also want my rectangle to have a length and a width. So draw किस कैरेक्टर से होना है वो इंफॉर्मेशन शेप से आएगी और उसका लेंथ और विड्थ यहाँ से आएगा। वी आर गोइंग टू मैनेज द लेंथ एंड विड्थ। लेट्स मेक द चॉइस के
कैरेक्टर वाली चीज हम शेप के कंस्ट्रक्टर को भेज देंगे, और यहाँ पर हम सिर्फ ये रख लेते हैं void set length and void set width. तो कोड अभी बहुत बड़ा नहीं होने लगा, तो ये वाले दो फंक्शंस तो मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ. और इसी तरह का मुझे चाहिए void set width, which is receiving an integer, and it is sticking the integer into your class variable जिसका नाम width है, वो उसके ऊपर अप्लाई हो गया. एंड वी आर गोइंग टू वो पब्लिक रखना है ताकि हम इसको एक्सेस कर सकें. एक्चुअली ये करते हैं, इसको भी प्रोटेक्टेड करते हैं जिससे वी आर एबल टू एक्सेस इट. सो अभी कोई डिजाइन का मसला नहीं पड़ा, और डिजाइन इज परफेक्टली फाइन, लेकिन मैंने सिर्फ अपने पेन वाले वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए तरीका थोड़ा सा अपने लिए आसान बना लिया बाय चेंजिंग इट फ्रॉम प्राइवेट टू प्रोटेक्टेड. So I have this. I also, if I want to pass over the character, I will say character. So just for a little bit of constructor practice as well, I will say कि इसको भी एक character C आने दें जिसको आप asterisk के साथ वो करते हैं, default कर दें. और इसका ये वाला part actually I just want to pass directly onto shape, और मैंने खुद कुछ भी नहीं करना है इसके कोड के अंदर. सो दिस इज माय शेप इज मोर, और अच्छा ड्रॉज का मैं भूल गई. ड्रॉ इज द वन दैट वी एक्चुअली वांटेड. ड्रॉ का इम्प्लीमेंटेशन मैं यहाँ पर डाल दूंगी ताकि मेरा रेक्टेंगल जो है वो क्रिएट हो सके. इसमें लूप डालना है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इट outside of the class, and we're going to say कि just do our nested loop. बाहर वाली साइड के ऊपर मैं width ले लेती हूँ, and internal side के ऊपर let me take the length. So basic shapes मैंने basic रखी हैं because इस वक्त shape draw करना हमारा problem नहीं है. That was a basic PF problem. इस वक्त हमारा we just want to figure out what is the best way to organize something like this right now. अच्छा, क्योंकि मैंने उसको प्रोटेक्टेड कर दिया ऊपर से, तो मैं अपने पेन वाला कैरेक्टर प्रिंट कर सकूंगी. एंड आई वांट के एक लाइन से प्रिंट हो जाए तो मुझे एक न्यू लाइन मिल जाए, और फिर जब शेप पूरा का पूरा प्रिंट हो जाए तो तब भी मुझे एक न्यू लाइन मिल जाए. एंड दिस लुक्स ओके. इसकी पार्शियल कोड की भी टेस्टिंग करते हैं ताकि इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग वो हम अभी कैच कर लें. अच्छा, अब मैंने करना है, लेट मी आल्सो जस्ट ट्राई आउट द शेप पॉइंटर एज वेल. सो लेकिन पहले रेक्टेंगल खाली इस्तेमाल करके देख लेते हैं. इफ आई वांट टू मेक अ रेक्टेंगल, so I want to make a rectangle and let me call it R1. नॉर्मल से तरीके से बनाते हैं इसको, एक कैरेक्टर भेज देते हैं अपनी मर्जी का, और हम कहते हैं कि R1 की लेंथ बनाएं समथिंग, और R1 का width बनाएं. I needed to do set length and set width. Some number,
and then if I say R1 को draw कर दे तो it should draw my rectangle for me. Just doing this to check the errors. Actual काम के ऊपर अभी आते हैं. If somebody would like to guess what the problem is, I missed writing something. You can take a second to check. मैं इसको फिर ठीक करती हूँ. And the way to guess it is कि वो लिख के मुझे कह रहा है कि मेरा कंस्ट्रक्टर जो है, शेप का कंस्ट्रक्टर जो है वो रेक्टेंगल के लिए इनएक्सेसिबल हो गया हुआ है, और लिखा हुआ है कि शेप कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट मेंबर डिक्लेयर्ड इन शेप. व्हाट हैज हैपेंड इज कि यहाँ पर मैं पब्लिक लिखना भूल गई हूँ. सारी चीज की सारी चीजें जो हैं ये प्राइवेट हो गई हैं बाय डिफॉल्ट. So it is having access issues. So otherwise our code is functioning as we expected it to, और आपका rectangle draw हो गया. And let's add on whatever we wanted to add on. अच्छा, अब मैंने करना ये है कि मेरा रेक्टेंगल चल रहा है. एक दफा पॉइंटर चेक कर लेते हैं अपना कि अगर मैं एक शेप पॉइंटर बनाती हूँ, शेप पॉइंटर, लेट्स कॉल इट शेप, और फिर मैं शेप को अपने R1 का एड्रेस असाइन करती हूँ, और मैं शेप के थ्रू उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हूँ. तो आई शुड बी एबल टू, सो आई शुड बी एबल टू से इसको ड्रॉ कर दें. And let me just draw it and then I'll show you the difference between कि मुझे वो वर्चुअल करने का फायदा क्या हो रहा है इस वक्त. So it is modifying it through shape as well. But another way to see the benefit of adding my virtual function की पूरी kind of access over here where I'm saying कि shape के अंदर एक virtual void draw रखें ताकि मैं उसको call कर सकूं. इस वक्त if you try to imagine कि मैं shape के through rectangle का वो बदलना चाह रही हूँ, लेंथ और विड्थ बदलना चाह रही हूँ, आई एम एक्चुअली नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज शेप के पास एक्सेस ही खाली ड्रॉ और पेन की है, बिकॉज दैट इज द वे दैट वी मेड आवर ड्रॉ एंड पेन शेप्स. सो बेसिकली ड्रॉ आपको इसलिए अवेलेबल हो रहा है, द ओनली रीजन दैट यू आर एबल टू एक्सेस ड्रॉ, जो कि असल में पेन का है, लेकिन शेप के थ्रू आप उसको एक्सेस ही इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आपने यहाँ पर उसको एक तो वर्चुअल डिक्लेयर कर दिया, और आपको पता है कि लॉजिकली देयर इज नो वे फॉर मी टू डिफाइन कि शेप कैसे ड्रॉ होता है जब तक कि मुझे पता नहीं हो कि शेप क्या है. तो मैंने उसको प्योर वर्चुअल भी कर दिया, और मैंने कह दिया कि यहाँ पे तो मैंने डिसाइड ही नहीं करना कि इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है. सो दिस इज द बेनिफिट दैट आई एम गेटिंग ओवर हियर फ्रॉम डूइंग अ वर्चुअल डिक्लेरेशन ऑफ दैट फंक्शन, कि जब मैं शेप के लेवल के ऊपर से भी उसको एक्सेस कर रही हूँ तो मुझे दूसरे वाले फंक्शंस तो नहीं अवेलेबल हो रहे जिनको मैंने प्योर वर्चुअल नहीं किया. आई कैन इफ आई वांट टू. इस वक्त मैंने नहीं किया हुआ, बट अगर ड्रॉ मुझे एक्सेस इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उसको प्योर वर्चुअल किया हुआ है. तो आवर शेप एंड rectangle relationship is working perfectly fine. इसको ऑफ कर देते हैं. We're not going to need this at the moment. और हम चेक करते हैं कि triangle के लिए what should we do. So let's try to keep it simple and just copy this. और इसी के ऊपर से कुछ बेसिक सी चीज बना देते हैं. We'll do a basic drawing of a triangle जिसके अंदर हम कह देते हैं कि मैं सिर्फ हाइट बताऊंगी और अपने हाइट के हिसाब से
एक्स्ट्रा एस्टरिस्क लगा लगा के जस्ट फिगर आउट के किस तरह से ट्रायंगल बनाना है. सो बेस और वो वाली डिटेल नहीं डाल रहे. यू कैन डू दैट इफ यू वांट टू, बट इस वक्त आई डोंट वांट टू गेट इनटू अ फैंसी काइंड ऑफ अ ट्रायंगल. लूप्स का इस वक्त मसला नहीं है हमारा. हमने बेसिकली देखना है कि ट्रायंगल किस तरीके से आपका आर्टिकुलेट हो रहा है. सो वी आर गोइंग टू पुट आवर ट्रायंगल इन. ट्रायंगल को वो पेन उसी तरीके से चाहिए, लेकिन ट्रायंगल का लेंथ और विड्थ नहीं होगा. हम कह रहे हैं कि ट्रायंगल की मैंने खाली हाइट स्टोर करनी है और मैंने हाइट के हिसाब से ड्रॉ कर देना. सो इफ इट इज जस्ट अ हाइट ऑफ 1 तो वो एक एस्टरिस्क बना देगा. इफ इट इज अ हाइट ऑफ 2 तो वो पहली लाइन में एक एस्टरिस्क बनाएगा, दूसरी में दो बना देगा, एंड सो ऑन. सो इट्स गोइंग टू बी डूइंग drawings like that. I hope you can imagine it. लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि with the basic, most basic kind of a triangle drawing, we can draw out a triangle if we say कि मुझे height ये चाहिए. So उसी तरह से हमारे पास फिर set width और set length नहीं होगा, मेरे पास सिर्फ एक set height होगा triangle का. And this is now our rectangle, sorry, our triangle straw. के अंदर मेरे पास width नहीं है. I want to say कि जितनी height है उतनी लाइंस ड्रॉ करें. और जब आप इसको ये ड्रॉ कर रहे हैं तो जस्ट गो अप टू मे बी I+1. लेट्स जस्ट ट्राई कि मेरा ट्रायंगल का ड्रॉ ठीक हो गया. चूड़ी से क्या रखता है. 5 का ड्रॉ कर लेते हैं और इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं. जस्ट टू चेक आवर एल्गोरिथम क्विकली कि मैंने 5 की हाइट दी है और वो 5 का बना रहा है. So reasonable kind of a triangle, we can go with that. अब मैंने करना है कि एक तो ये चेक कर लेते हैं, फिर से ये वाली चीज चेक कर लेते हैं. Can I use my shape pointer to also point to my triangle and draw it? And yes, I can. अच्छा, अब जो है सो मेरी पूरी की पूरी हायरार्की ठीक बन गई है. मेरी इंडिविजुअल टेस्टिंग जो है वो भी ठीक हो गई है. नाउ आई वांट टू डू दिस. एक तो नई चीज ये करते हैं कि from the capability that we had yesterday. अच्छा, एक चीज तो ये कर लेते हैं कि एक बाहर के फंक्शन में पॉइंटर पास करके देखते हैं. कल हमने रेफरेंस पास किया था, तो एक पॉइंटर पास करके देखते हैं सो दैट वी कैन कवर ऑल केसेस. उसके बाद फिर डायनामिकली ट्रायंगल्स या चीजें क्रिएट करने के ऊपर आते हैं. सो वी वांट टू डू एन इंडिपेंडेंट फंक्शन जिसका नाम टेस्ट रख लेते हैं, फिर से टेस्ट ड्रॉ. और इसको हम कहते हैं, यस्टरडे हमने यहाँ पे रेफरेंसेस लिखी थी, यहाँ पर हम डालते हैं कि मैं शेप का पॉइंटर भेजने लगी और उस पॉइंटर के थ्रू यू आर गोइंग टू ड्रॉ आउट द शेप फॉर मी. और यहाँ पर मैं करती हूँ कि I have a shape pointer. I have again थोड़ी सी चेंज लाने के लिए let's make a triangle pointer.
और लेट्स डू दिस. मैं ये करूँ अगर कि माय शेप इज इक्वल टू न्यू ट्रायंगल with the character of कोई कैरेक्टर बना लेते हैं. एट उठा लिया मैंने. एंड देन आई वांट टू से कि जो मेरा टेस्ट फंक्शन है, टेस्ट नो, उसको मेरा शेप पास कर दें. वी आल्सो शुड, हमने वो एक्चुअली ये नहीं किया हुआ. थोड़ी सी वेरिएशन ला रही हूँ क्योंकि हमने बहुत फ्लेक्सिबल क्लास नहीं बनाई थी. बट लेट्स नॉट डू इट डायरेक्टली, लेट्स डू इट लाइक दिस. एक ट्रायंगल भी बना लेते हैं. ट्रायंगल pointer, so we can do this. मैं ये करना चाह रही हूँ. The triangle is equal to, अब मैं मेमोरी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से एक नया ट्रायंगल मैंने क्रिएट किया. उसके अंदर कैरेक्टर डाल देते हैं जो सा भी हम डालना चाहते हैं. ट्रायंगल की सेट लेंथ करते हैं, सेट हाइट करते हैं सॉरी. और फिर वी आर गोइंग टू पॉइंट आवर शेप टू दैट ट्रायंगल पॉइंटर. तो डिफरेंट ये इसलिए हो गया है. तो अगेन इट्स द डिफरेंस आई एम ट्राइंग टू क्रिएट इन इज कि पीछे जब हम असाइनमेंट कर रहे थे ये वाली, तो बेसिकली मैं कह रही थी रेक्टेंगल बनाए और रेक्टेंगल का एड्रेस उसको दे दें. अब मैंने किया रेक्टेंगल का पॉइंटर बनाया, रेक्टेंगल के पॉइंटर को नई मेमोरी एक्सेस की है. तो अब मेरी जो असाइनमेंट है दैट इज जस्ट शेप इज इक्वल टू ट्रायंगल. अर्लियर मेरी जो असाइनमेंट थी दैट वाज शेप इज इक्वल टू address of a rectangle or address of a triangle. This one difference is this that I've brought in. And the second difference is basically कि मैंने अपना जो टेस्ट फंक्शन इधर रखा हुआ है वो yesterday वाले एग्जांपल की तरह रेफरेंस नहीं रखा हुआ, मैंने पॉइंटर पे पास कर दिया. I want to see if I'm able to draw this triangle जिसके अंदर डॉलर साइन का पेन बना हुआ है और उसका हाइट 6 बना हुआ है. If I'm able to pass it to my function and get it to draw it via the virtual function. So ये भी ठीक चल रहा है. अब next thing that I want to add in over here is कि मैं चाहती हूँ कि इसको बंद कर देते हैं, इस वाले को भी बंद कर देते हैं. What I want now is कि मैं अपने I want a list of shapes, and I had a list of pets yesterday as well, but now I want a list of shapes and I want the user to choose कि 10 शेप. ये हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि 10 की एरे ही बनाते हैं, बट लेट द यूजर चूज कि उसने कितने डालने हैं, अप टू 10 कितने शेप्स डालने हैं और कौन कौन से शेप्स डालने हैं. कि पहले ट्रायंगल डालना है, फिर रेक्टेंगल डालना है, या जो भी करना है उसको यूजर ड्रिवन करते हैं. सो दैट वी कैन सी कि अब जो आपके पास अब मैकेनिक्स की एक्सेस आ गई है, हाउ डू वी एक्चुअली allow the user to now make choices and exploit this mechanism that you now have of having an array जिसके अंदर multiple किस्म की चीजें हैं. So सबसे पहले हमें चाहिए एक शेप पॉइंटर्स की एरे जिसका नाम हम शेप्स रख देते हैं और हम कहते हैं कि इसका साइज तो 10 ही हमने रखना है. we're not going to, इसको एडजस्टेबल कर सकते हैं लेकिन अब मैं एक लेवल के ऊपर एडजस्टेबल होना एक लेवल के ऊपर ऐड कर रही हूँ. we can add the second one in later at some point, but इस वक्त मैं कह रही हूँ कि मुझे 10 शेप्स की एरे बना के दे and then ask the user. इस तरह से पूछ लेते हैं, लूप में पूछ लेते हैं 0. यू कैन वेरी दिस कि वो यूजर चूज कर सके कि उसने 10 से कम भी करने हैं तो वो कर ले. 5 बना लेते हैं ताकि हम जल्दी टेस्ट कर सकें. 5 शेप्स डालनी है.
एंड वो वाले मैकेनिक्स के 5 से कम करने ज्यादा करने हैं वो आप यू कैन प्रॉब्ली ऐड, यू शुड बी एबल टू ऐड इन। आई एम जस्ट गोइंग टू डू 5। अच्छा मैं कह रही हूँ 5 दफा यूजर से पूछना है कि आपने कौन से वाला शेप अपने एरे के अंदर इंसर्ट करना है, एक इसके अंदर काउंट हमें 0 से ही पता चल जाएगा। सो आई एम गोइंग टू से सी आउट, आस्क द यूजर के select shape to add, triangle or rectangle, cn एक वो रख सकते हैं, इनपुट पे क्या रखता है इनपुट। अच्छा सो अब मेरे पास या वो ट्रायंगल चूज करेगा या रेक्टेंगल चूज करेगा। इफ द यूजर हैज चोजन एन आर, वी आर नॉट डूइंग एरर, एरर चेकिंग मैं इस वक्त नहीं डाल रही, वी आर गोइंग टू अज्यूम के my user is going to use this sensibly. If my input is equal to a T or an R, any one option, तो फिर मैंने एक नया और यहाँ पर मैं पॉइंटर्स बना रही हूँ अपने पास। अच्छा दिस इज नाउ दिस इज द न्यू दिस इज द मैकेनिज्म जो हमने पहले डिस्कस नहीं किया हुआ। दिस इज गोइंग टू अलाउ मी टू क्रिएट रेक्टेंगल्स और ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन व्हाट द यूजर chooses. So ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है, ये आप स्टैटिक वाले वेरिएबल्स के साथ नहीं कर सकते। So now we are going to say कि एक पॉइंटर रख लें ट्रायंगल का और फिर इसी पॉइंटर को यूज करें मल्टीपल न्यू मेमोरी एलोकेशंस करने के लिए, कोई ट्रायंगल्स हो या रेक्टेंगल्स। सो आई एम गोइंग टू से कि एक ट्रायंगल बना दे, मुझे ट्रायंगल पॉइंटर बना दें और एक मुझे रेक्टेंगल पॉइंटर बना दें। So right now they're just sitting here to hold some memory. But अगर मुझे यूजर कहता है कि मुझे एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है तो मैं इस पॉइंटर को इस्तेमाल करते हुए एक न्यू रेक्टेंगल क्रिएट कर लूं। अच्छा आई कैन ऑल्सो आस्क द यूजर टू चूज कि उसने कैरेक्टर कौन सा डालना है और उसने साइज कौन सा डालना है। बट राइट नाउ इसको जस्ट क्विकली रैप अप करने के लिए ना मैं सेकंड लेवल ऑफ यूजर चॉइस जो है वो हार्ड कोड करने लगी हूँ। बट आई कैन इफ आई वांट, मैं न्यू करने से पहले यूजर को पूछ सकती हूँ कि आपने कैरेक्टर कौन सा इस्तेमाल करना है अपनी ड्राइंग के लिए, और फिर वो पूछ के मैं अपने कैरेक्टर के अंदर डाल सकती हूँ। लेकिन ये कैरेक्टर इस वक्त मैं हार्ड कोड करके बस एक ही कैरेक्टर स्टिक इन कर रही हूँ सो दैट वी कैन get like the dynamic memory allocation part done quickly, and then we can user input you should बाकी वाला user input you should be able to handle। ये वाला जो user input है ना ये this is kind of new, so we will look at this specifically। अच्छा सो यूजर ने न्यू रेक्टेंगल डालना है, यूजर को हम पूछ सकते हैं कि कौन सा वाला आपने कैरेक्टर लेना है, लेकिन अभी हम नहीं पूछ रहे। और फिर यूजर से हम ये भी पूछ सकते हैं कि रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ क्या रखना है, लेकिन वो भी अभी आई नो यू नो हाउ टू डू दैट, सो आई एम नॉट गोइंग टू ask the user to do it, I'm just going to stick it in ताकि हम जल्दी से इसको टेस्ट कर लें। बट आई कैन लीव इट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू टू कस्टमाइज दिस ताकि यूजर अपनी मर्जी का रेक्टेंगल, अपनी मर्जी की शेप और अपनी मर्जी की लेंथ और अपनी मर्जी की विड्थ के साथ लिख सके। अच्छा अगर तो रेक्टेंगल बनाना है तो दिस इज द रेक्टेंगल दैट यू बिल्ड एंड देन यू स्टिक दिस इनटू योर shapes array। So you say कि shapes का आयत वाला जो शेप का पॉइंटर पड़ा हुआ है उसको पॉइंट कर दें इस रेक्टेंगल के ऊपर। अच्छा उसके बाद मैंने कहना है कि अदरवाइज इफ माय, इसको कॉपी कर लेते हैं बिकॉज मैंने इसी का रेप्लिका काइंड ऑफ बनाना है बट फॉर अ ट्रायंगल। लेकिन अगर और मैं इसको एल्स भी करके कर सकती हूँ बिकॉज वी आर सेइंग कि वी आर अज्यूमिंग के यूजर जो है वो सेंसिबल तरीके से बना रहा होगा चीजें।
इफ करना है एल्स करना है अप टू यू। इट मैटर्स जब आप सारी एरर चेकिंग डाल रहे हो, लेकिन इस वक्त हम एरर चेकिंग डाल ही नहीं रहे। वेरिएशन के लिए इसके अंदर हार्ड कोडेड सिंबल बदल देते हैं, बट अगेन आई विल नॉट अलाउइंग द यूजर टू डू मच ओवर हियर। कैन यू ट्राई एंगल की सेट बेस, सॉरी सेट हाइट कर दें, छोटा बनाते हैं सो दैट वी कैन सी। और फिर अब यूजर ने अगर ट्रायंगल चूज किया है तो उसको ट्रायंगल उसकी एरे के अंदर ऐड कर दें। और उसके बाद जब ये सारा बन गया है तो आई वांट टू देन print out the entire array of shapes. So I'm going to create this. I'm going to say, अब एक ही लाइन होगी मेरे पास। I'm just going to say कि जो आपने सारे shapes collect किए हैं उनको ड्रॉ करते जाएं। पहली वाली एरे के अंदर यूजर ने 5 कोई शेप्स अपने चूज किए हैं और एरे में फिट किए हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ ऑल ऑफ देम। सो इसको टेस्ट करके देखते हैं। दिस इज आवर बेसिक वर्क काइंड ऑफ डन। सो आई एम गोइंग टू से एक ट्रायंगल डाल दें, एक रेक्टेंगल डाल दें, एक और रेक्टेंगल डाल दें, एक और ट्रायंगल डाल दें, एक और ट्रायंगल डाल दें। सो इट शुड हैव क्रिएटेड ट्रायंगल डाल दें, ट्रायंगल डाल दें, रेक्टेंगल, rectangle, one more triangle. And if I try to check, so 2 triangles, 2 rectangles, and 1 triangle at the end. So similar to what we did today, लेकिन अब हमने यूजर के कंट्रोल के अंदर काइंड ऑफ दे दिया है कि इस चीज को पॉपुलेट किस तरीके से करना है बाय यूजिंग डायनामिक मेमोरी लोकेशन बेस्ड ऑन व्हाट द यूजर आस्क्स। ये वाली जो चीज है जो आपने यूजर की मर्जी के ऊपर या 5 रेक्टेंगल बना दिए या 5, आई कैन मेक 5 ट्रायंगल्स इफ आई वांट। सो आई कैन कीप सेइंग कि ट्रायंगल 2 3 4 5 ट्रायंगल्स बना दे, वो सारे के सारे ट्रायंगल्स बना देगा। आई कैन से कि सारे के सारे रेक्टेंगल्स बना दो, वो सारे के सारे रेक्टेंगल्स बना देगा। This capability I do not have if I am using इस तरह का declaration where I am creating an object. I can only do this if I am using a declaration like this where I am saying pointer बना दो, उसके बाद आपने जितने भी उसके उस तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं वो एक न्यू की कॉल करके डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करके और उसको किसी ना किसी जगह के ऊपर फिर सेट करके उसी वेरिएबल को फिर यूज कर लो। सेट हमने इधर किया और जब इस लूप में वापस आओगे तो आप इसी वाले वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए एक नया रेक्टेंगल बना के फिर से शेप्स की एरे के अंदर डालते जाओगे। सो वी हैव अ शेप्स एरे, वी हैव 2 रेक्टेंगल, वी हैव 2 शेप की टाइप्स के पॉइंटर्स। इन शेप की टाइप्स के पॉइंटर्स के थ्रू मैं डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करा के शेप्स के 5 स्लॉट्स के अंदर फिट करती जा रही हूँ। सो आई एम आइदर putting a rectangle into my shapes index or I am putting a triangle into my shapes index, or depending on how many of them the user wanted. And I hope you can see इसको भी आप dynamic कर सकते हो अपनी मर्जी से, कि जरूरी नहीं है कि वो 5 ही करे। मैंने अभी for loop बना दिया because it's the easiest quickest to make and test. So but you can put in any kind of variation on this and basically give flexibility to your user कि वो कितने आइटम्स क्रिएट करना चाहते हैं और किस तरीके से उनको मैनेज करना चाहते हैं। सो वी हैव दैट नाउ बिकॉज वी हैव द एबिलिटी to do we have the ability to do virtual functions which we did yesterday. We have the ability to make them pure virtual functions, जिसका मतलब है कि उसकी implementation ही जिससे कि I don't want to decide कि इस वक्त शेप ने ड्रॉ कैसे करना है। And as soon as we put one virtual function into a class, वो class जो है वो खुद ब खुद ही abstract class बन जाती है। और उसके बाद हमने इस सारे के सारे concept को we put it into an application जहाँ पर आपके shapes create हो रहे हैं।
via base derived class objects जो कि dynamic memory से allocate हो रहे हैं. So if we have any questions, I can hold on with this. Otherwise, let me take attendance and close. अगर questions नहीं है तो मैं recording बंद कर देती हूँ.